A very warm and respectful welcome to our Honorable Principal Dr. Nirja Masih, our respectful faculty members, and our distinguished guest speaker, and all the participants who have joined us today on Google Meet. I am Shreya Shri, and on behalf of the Postgraduate Department of Economics, in collaboration with Center of Women Studies, Isabella Thoburn College, I feel privileged to welcome you all today to program under Mission Shakti Phase 5, College Girls Cybersecurity Issues and Challenges. In today's rapidly evolving digital era empowerment, it's not limited to education alone. It's include being aware, alert, and secure in the online world. This session aims to highlight the cybersecurity challenges faced by the college girls and to equip young women with the knowledge and confidence needed to safe and responsible digital engagement. To begin today's program on the serene and positive note, I cordially invite Hannah to lead us in the word of prayer. Good morning, respected guest speaker, faculty in charge, and my fellow students. As per our tradition, we will start the program with a word of prayer. We specially offer this prayer for our guest speaker, professors, the participants, and all the students present here today. I request everyone to bow down their heads for the prayer. Almighty and loving Father, creator of heaven and earth, we praise you and adore you. Loving Father, we come to you this hour asking for your blessing and help as we begin this program. Bless us all and bless this event. Lord, help us to learn new things and enhance our knowledge through this initiative. We also pray for the smooth functioning of this event. We especially offer this prayer for our guest speaker, our presenters, our professors, and all the students present. Almighty God grant them peace and good health lifelong. We offer this prayer through Christ our Lord. Amen. Thank you, Hannah, for the meaningful and uplifting prayer. To formally commence the program, I now respectfully invite our head of the department, Dr. Anupama Shravastav, ma'am, to deliver the welcome address. So thank you, Shreya and Hannah. And we are starting this program on college girls and cyber security. So welcome all the students because they are having exams. So even then, if you appear on screen, then it's a welcome for you because we can't do a program without the students, and that's why we thought that we will be, since it's a very sensitive topic, I requested Mr. Brijendra to come online and, share with you certain concerns and issues and challenges which we face when we talk about cybersecurity because he's an expert in this area and works with several organizations. So we will, I think somebody will give the introduction of him. I also welcome the principal in who will be joining us shortly, and also the faculty members who have been always with me whenever we conduct any kind of program, whether it relates to Mission Shakti program or it relates to the departmental activities. So. This is how we talk about college girls and cybersecurity. Cybersecurity is getting more and more concerned because more and more persons are using, online devices, the digital devices, the AI methods which are in place now. So this cybersecurity concerns are also very rampant now. So we need to talk about this, that how the girls, especially girls we are talking about because ours is a girls institution. So I told Bijen that we will particularly talk about the girls because there are several areas where the girls are more affected than the boys in our patriarchal society. So we have to see that how the girls can take those steps which can secure them digitally, and the crimes which are happening on the cyber platforms, we have to be aware about it in advance so that we are not becoming a kind of target in that sense. So digital arrest and all these news you have been reading in the newspaper, so it's a kind of concern for everybody that how we can be saved through that. So it's a very important topic. So welcome Mr. Brijen on this online platform. Thank you.
Beta, unmute your mic. Thank you very much, ma'am, for your motivating and insightful words. Your guidance and encouragement continue us to inspire us to grow with confidence, responsibility, and purpose. As we proceed further, at this point, I would like to invite Garima ma'am to introduce us to the program and brief us about it. Thank you, Shreya. Good morning, everyone. So before proceeding, I would like to introduce the theme of this program. Mission Shakti, as the name itself suggests, it is about empowering and educating women and girls to channel their inner strength and overcome the situations with resilience. So in this respect, cybersecurity is a crucial aspect of safety. That's why this awareness session and digital poster competition is staged. With time, the students will present their digital posters on cybersecurity and making us aware for safe navigation of digital platforms. So I hope the program will go successfully. Over to you, Shreya. Now I request my friend Navya to kindly introduce today's guest speaker, Dr. Brajendra Singh. Over to you, Navya. Thank you, Shreya. Good morning, everyone. It's a pleasure to introduce our speaker for today's session, Mr. Brajendra Singh. He's a cyber forensics and cybercrime awareness professional with hands-on experience in cybersecurity analysis, threat detection, vulnerability assessment, and incident response. His academic background includes a postgraduate diploma in cybersecurity from UPS IFS Lucknow, along with certifications in digital forensics from EC Council, Python from Groovy, and an advanced diploma in computer application from NILET. He is also a BSc graduate from CSJMU Kanpur. He has received practical training at C3I Hub IIT Kanpur, completed an internship at the Uttar Pradesh State Forensic Science Laboratory, and undergone specialized drone training at RAFE M-Fiber Noida. Additionally, he has actively contributed to cybercrime awareness programs and various professional training initiatives. We are grateful to have him with us today. Please join me in welcoming Mr. Brajendra Singh to begin the session. मेरे दोस्त ने भेजा है और सपोज उसमें कोई लिंक हो और आप उस लिंक को क्लिक कर दो तो क्या होगा? कभी आपने ये सोचा है? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अभी क्रिसमस आ रही है और अलग अलग नंबर से आपको मैसेजेस आएंगे हैप्पी क्रिसमस के, और हैप्पी क्रिसमस में एक लिंक आएगा कि ये ओपन द लिंक फॉर फला गिफ्ट या ये भी ऐसा कुछ, और आप उस पर क्लिक कर दोगे, कुछ नहीं होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, और आपका जो है कैमरा और आपका माइक या आपका पूरा फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा एक क्लिक करने से। तो उससे क्या होता है कि ना साइबर अपराधी जो होते हैं उनको एक चाहिए होता है कुछ ना कुछ मोटिव या मौका। उनको मौका कौन देता है? हम देते हैं। अगर हम अवेयर हों कि हमको उस लिंक पे क्लिक नहीं करना है तो कोई भी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होगा, मतलब अगर वो भेज भी रहे हैं तो आपको क्लिक नहीं करना है। हमको क्लिक करने से पहले 3-4 बार सोचना पड़ेगा। अगर सोचेंगे नहीं तो फिर किसी फ्रेंड ने भेजा कर दिया तो फिर डिफरेंट थिंग हो जाती है। मैम नेक्स्ट लगा दीजिए प्लीज़ पेज। हाँ, तो हमको साइबर सिक्योरिटी की नीड क्यों है? क्योंकि अभी साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा चल रहा है। सबसे ज़्यादा इसलिए चल रहा है क्योंकि हर चीज़ आजकल डिजिटल है, तो क्राइम भी डिजिटल ही हो रहा है। और चोर जो पहले आते थे घर लूट के ले आते थे, अभी उनको भी क्या है, वो घर को नहीं आना पड़ता उनको, वो खाली एक लिंक भेज देते हैं, आपका कुछ ऐसा भेजा उन्होंने जिसको आपने एक क्यूआर भेज दिया, आपने क्यूआर स्कैन कर दिया, कुछ भी कर दिया, आप हैक हो गए। अब उनको कहीं निकलने की ज़रूरत नहीं है। वो इंडिया के किसी भी कोने से या वर्ल्ड के किसी भी कोने से बैठे-बैठे आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और आपका जो मेन है पैसा, वो आपका डाटा। अच्छा, अभी मुझे कोई बताएगा क्या कि इम्पोर्टेंट क्या है, डाटा या पैसा? आज के एरा में कोई भी? सर, डाटा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि आज की डेट में डाटा ही पैसा है। क्योंकि अगर आप डाटा अपना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो डाटा के थ्रू सारा पैसा निकल जाएगा। आपके आधार कार्ड की डिटेल, आपका नाम और कुछ भी, और वो आज की डेट में डिजिटल मनी है। जो टेक्निक्स साइबर सिक्योरिटी जो क्रिमिनल्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं वो स्कैमिंग के लिए। और जैसे आपका डाटा हो गया, सपोज़ आपका आधार कार्ड है, आपके आधार कार्ड पे आपका नाम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखी है, फादर नेम लिखा है, पीछे एड्रेस लिखा हुआ है, और सपोज़ आपके आधार कार्ड का डाटा मुझे मिलता है और मैं उससे आपके किसी फ्रेंड को फ़ोन करता हूँ और उससे ये बोलता हूँ कि आपकी जो फ्रेंड है वो यहाँ पे है और उसका एक्सीडेंट हो गया है। जैसे अभी स्कैमिंग चल रही है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके जेब से आधार कार्ड मिला हुआ है।
और उसमें ये डिटेल है। तो आप ऐसा करिए, इनका एक्सीडेंट हो गया, इनका मतलब मेजर पार्ट जो है डैमेज हो गया और इनको जो है हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है, प्लीज़ 5,000 या 10,000 भेज दीजिए इसमें, तो मैं इनको कर दूँगा। ठीक है ना? तो आपने तुरंत ही अपने दोस्त को देखा, अच्छा उसका ये हो गया, लो पैसे ले लो। तो उसने पैसे भेज दिए। तो आधार कार्ड के सिंपल, सबसे सिंपल मैं फ्रॉड की टेक्निक बता रहा हूँ आपको। ये सबसे सिंपल है, इससे अच्छे-अच्छे होते हैं। जैसे आपका डिजिटल में मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। आपका जब ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट का जब ये आता है आपका पार्सल, तो आप क्या करते हो? पार्सल लेते हो, उसको फाड़ते हो, उसके अंदर का सामान निकालते हो, ऊपर का जो कवर होता है वो आप फेंक देते हो। आपको ये नहीं पता कि आपके डिजिटल जो आपका अमेज़न का जो पार्सल है, उसपे आपकी कितनी डिटेल लिखी हुई है। हैकर्स और जो स्कैमर्स होते हैं क्या करते हैं, उन पार्सल्स को कलेक्ट करते हैं। उन पार्सल को कलेक्ट करने के बाद उसमें आपका आईडी नंबर होगा, जो आपने ऑर्डर आईडी की होगी। उसके अलावा फिर उसमें आपका नाम होगा, फिर आपका और फ़ोन नंबर होगा। और सपोज़ मैं स्कैमर हूँ, मैं इस नंबर पे फ़ोन करूँगा और मुझे तो आपको स्कैम ही करना है। तो मैं ऐसे करूँगा कि आपको जो उठाया मैंने, आपका नंबर, हाँ, हाँ जी। आपका नंबर मैंने उठाया और मैंने ये फ़ोन करके कहा कि मैम ये आपका ऑर्डर था और आपको डिलीवर हो गया? तो आपने कहा हाँ, डिलीवर हो गया। तो फिर मैं आपसे कहूँ मैम अभी आपका डिलीवरी था, क्या आप हमारे ना एक 1000 स्पेशल कस्टमर्स में आप शामिल हुए और मैं आपको एक ओटीपी भेज रहा हूँ, आप ओटीपी कंफर्म करा दीजिए और फिर आपको ना ये आपको 1 साल का वीआईपी वाला वो लॉन्च मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तमाम जितने भी वो लालच दे सकते हैं आपको और एक ग्रीड के चलते आप उसको ओटीपी बता दोगे। जैसे ही आप ओटीपी बताते हो, आपके खाता कॉम्प्रोमाइज़ और पैसा गया। तो ये डिजिटल आइडेंटिटी का मतलब जितने भी आप सोचते हो कि इससे क्या हो सकता है, सब कुछ उसी से होता है। एक मोबाइल नंबर शेयर करना अपने कंसेंट के बिना उतना ही घातक है, जितना आपको अपना बैंक का एटीएम विथ पिन किसी के हाथ में देना। सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा-सा टेक्निकल आप समझो, अगर टेक्निकल समझ सकते हो तो। क्योंकि टेक्निकली स्कैमर्स टेक्निकली ही काम करते हैं। स्कैमर्स कभी भी नॉर्मली नहीं काम करते, स्कैमर्स हमेशा टेक्निकली काम करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर स्कैमर्स। उसके अलावा डिपेंडेंसी हमारी जितनी भी है, सपोज़ हम ऑफ़िस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आज की डेट में सभी के पास एक मोबाइल, एक लैपटॉप है, क्योंकि हम सारा काम डिजिटली कर रहे हैं। और जितना भी डिजिटली काम हो रहा है, हम कभी भी, कहीं भी, किसी भी कोने में बैठ कर के अपना मेल खोलना है, अपना व्हाट्सएप वेब खोलना है या कुछ भी खोलना है। बट अगर कोई भी अगर सेशन आईडी आपकी व्हाट्सएप की पा जाए किसी भी जगह से, तो वो आपका व्हाट्सएप हैक कर सकता है और आपके व्हाट्सएप से हैक करके या आप कुछ भी करके और आपकी फ़ोटो लगा करके, आपका सारा डिजिटल डाटा निकाल करके एक अपना अलग से अकाउंट खोलेगा। आपके फ्रेंड लिस्ट में सारे जितने कॉन्टैक्ट होंगे उस पे मैसेज भेजेगा कि मुझे 2,000 रुपए की ज़रूरत है। और सपोज़ आपके अगर 100 दोस्त हैं और 100 में से 20 ने भी अगर 2-2 हज़ार कर दिए, तो वो 40,000 रुपए हो गए। स्कैमर के लिए बैठे-बैठे, घर बैठे 40,000 रुपए कमाना कितना आसान है, और वो यही करते हैं। तो जितना भी पर्सनल डाटा आपका ब्रीच होता है, पर्सनल डाटा ब्रीच का ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पर्सनल डाटा ब्रीच अगर हो रहा है, तो वो कहीं न कहीं आप ही देते हो। आपने कितनी बार क किस में आप में से कितने लोगों ने आज तक ये किया है कि एक फॉर्म भरा हुआ है किसी ने ऑनलाइन और इंस्टाग्राम पे आपने कोई पेज खोला, उसमें एक फॉर्म आया, आपने अपनी डिटेल भर दी उसमें, ओके कर दिया, सबमिट कर दिया। कितने लोगों ने किया आज तक? आई थिंक बहुत लोगों ने किया होगा, क्योंकि बहुत लोग करते हैं। कभी आप तनिष्क जैसे शोरूम में जाएँ, क्योंकि गर्ल्स की बात हो रही है और गर्ल्स के लिए गोल्ड सबसे बेस्ट होता है। स्कैमिंग का सबसे अच्छा तरीका। तो गोल्ड का ऑप्शन आता है लेडीज़ को कि आप ना तनिष्क में एक उसके 100 साल पूरे हो गए हैं और मैं एक ऑफ़र, तनिष्क में ऑफ़र आया हुआ है और प्लीज़ आप ये डिटेल भर दीजिए और इस ऑर्डर को ग्रैब करिए। लोग क्या करते हैं ना, गर्ल्स खासकर गोल्ड और कपड़े, गोल्ड, कपड़े, ज्वेलरी यही सब है। तो स्कैम्स करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका यही होता है कि उनको फँसाया जाए। तो एक नायका डॉट कॉम करके है साइट, उस पे अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो लोग करते क्या है, नायका में NYK डबल ए है, उस पे ट्रिपल ए कर देंगे या नायका डॉट डॉट कर देंगे। एक स्कैमिंग साइट बनाएँगे, उस पर से आपको मैसेज आएगा और जब आप खोलोगे तो आपको सेम वही GUI दिखेगा जो ओरिजिनल साइट का है और उस पे आप अपनी सारी डिटेल दोगे। डिटेल डालने के बाद आप उस पे ऑनलाइन पेमेंट भी कर दोगे। पेमेंट करते टाइम आप जितनी भी डिटेल उस साइट पे दोगे, वो साइट सीधे-सीधे आपका स्कैम करेगा। फिर उसके पास आपका सारा डाटा है विद ओटीपी। ये होता है साइबर सिक्योरिटी।
मतलब साइबर एरा में आप कुछ भी मतलब सेफ नहीं है, ऑनलाइन तो नहीं है फिलहाल। आपको बहुत सोचना समझना पड़ेगा कि वो साइट कैसी है, साइट फ्रॉड तो नहीं है, ये चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। मैम नेक्स्ट पेज। देखिए मैंने आप इसमें लिखा हुआ है कॉमन जो फ्रॉड टेक्निक्स हैं, इसमें सबसे पहले फ़िशिंग है। फ़िशिंग में क्या होता है, ईमेल और मैसेज के थ्रू आपको जो है एकदम सेम ईमेल, ईमेल कैसे, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, gmail.com है, गूगल के मैसेजेस आपको जेनुइनली आते हैं आपके मेल पे। बट अगर मैं क्या करूँ, एक gmail.com में जीमेल का MEIL कर दूँ, GMEIL.com, और उसको मैं भेज दूँ आपको, तो आप ना एक सरसरी निगाह में देखोगे छोटा, क्योंकि छोटा सा लिखा होता है, कोई ध्यान नहीं देता है, और मैं gmail.com को gmail.com कर दूँ, तो आपको ये लगेगा कि ये मैसेज जीमेल से आया हुआ है, और आप ना उस चीज़ पे क्लिक कर दोगे। सेम एकदम फ़िशिंग ऐसी ही होती है। फ़िशिंग का तरीका सेम होता है, बिल्कुल सेम, वो एकदम ना स्पूफ करते हैं, एक सेम नायका.com का, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया है। मैं आपको अगर नेक्स्ट टाइम मैं आया, अगर अभी ऑनलाइन से ऑफलाइन अगर मैंने क्लास ली, तो मैं आपको सेम पेज बना के दिखाऊँगा। जो फ्रॉड का जो स्पूफिंग का तरीका होता है, मैं आपको सेम पेज बना के दिखाऊँगा कि कैसे इंस्टाग्राम का एक स्पूफ पेज, जो कि नॉर्मली बन जाता है, बहुत ईज़ी है बनाना। तो वो इंस्टाग्राम का पेज बना कर के ना आपको उसका लिंक भेजते हैं। तो आपने देखा कि आपके किसी फ्रेंड ने आपको एक मैसेज भेजा, वो होता है एक्चुअली स्पूफिंग पेज का लिंक। आपने स्पूफिंग पेज पे जैसे ही आपने लॉगिन किया, क्योंकि वो आपको जब खोलोगे तो बिल्कुल एकदम GUI सेम इंस्टाग्राम का होता है। इंस्टाग्राम का पेज आप खोलोगे, और जैसे ही खोलोगे उस पे आप जो भी क्रेडेंशियल डालोगे अपने, वो उस जो नेक्स्ट पर्सन जो स्कैमर है, उसके पास पूरा-पूरा स्कैम का पेज सेम सिंपल-सिंपल जाता है। आपका आईडी पासवर्ड तो उसको तुरंत मिल जाता है। उसके बाद उस पे जो भी आप काम करोगे, उसका सारा डिटेल आपको जाएगा। मैं जब भी मैम से मैं पूछूँगा जब टाइम होगा, तो मैं एक दिन आकर के जब ऑफलाइन आऊँगा तो मैं आपको करके दिखाऊँगा ये हैंड्स ऑन, सीधे-सीधे। इसके बाद रैनसमवेयर है। रैनसमवेयर में सेम यही होता है। एक मालवेयर होता है, एक ये एक तरीके का वायरस है। तो इसमें क्या होता है, ये आपको भेजा जाता है, और जैसे ही आप इस पे लिंक या क्लिक या कुछ भी करते हो, आपका पूरा सिस्टम एन्क्रिप्ट हो जाता है, और एन्क्रिप्शन के बाद, जैसे ही वो एन्क्रिप्शन होता है, एन्क्रिप्शन के बाद ना वो आपसे पैसे माँगते हैं कि अगर आप इतने पैसे मुझे दो, अदरवाइज़ आपका सारा डाटा एन्क्रिप्ट रहेगा। तो उसको आपने डाटा, अगर आपका प्रीशियस है थोड़ा-सा, या आपको लगता है कि हाँ, ये डाटा आपके पास कहीं और आपका बैकअप नहीं है, तो डिफरेंट कंपनीज़, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ से लेकर के छोटे-छोटे ऐप तक, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक बार सोनी के ऊपर ये अटैक हुआ है। सोनी जो गेम है, सोनी जो, तो सोनी के ऊपर ये हुआ, और सोनी ने रैनसमवेयर दिया था बहुत अच्छा। तो ऐसे ही छोटे-छोटे जो होते हैं सिंपल-सिंपल, मोबाइल भी इससे हो जाता है पूरा, मोबाइल पूरा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। स्विच ऑफ भी उनकी मर्ज़ी से होगा, स्विच ऑन भी उनकी मर्ज़ी से होगा। तो ये होता है रैनसमवेयर। उसके बाद आईडी थेफ्ट का नॉर्मल है, उसमें वही आप अपने आईडी पासवर्ड या कोई भी क्रेडेंशियल सेम करते हो। लास्ट में सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग में भी सेम है, वो एक व्हाट्सएप पेज बनाते हैं वेब लॉगिन का, और आपको किसी भी तरीके से वो एक लिंक भेज देंगे, एक ओटीपी आपसे कलेक्ट कर लेंगे, या उसके अलावा आपका इंस्टाग्राम पेज या सोशल मीडिया का कोई भी हैंडल, किसी भी तरीके से। तो वो बहुत तरीके से आपको, मतलब काफ़ी तरीके हैं, ये तो मैंने कुछ इसमें लिखे हुए हैं। मैंने मैम को एक बुक शेयर करी हुई है। आपको वो, या आपका जो ऑफ़िशियल ग्रुप होगा कोई, मैम प्लीज़ उस साइबर सेफ गर्ल को आप उसमें शेयर कर दीजिएगा। एक कार्टून बुक है, बहुत अच्छे तरीके से उसमें सिखाया गया है कि कैसे लड़कियों के साथ जितने भी स्कैम्स या ऐसे होते हैं फ्रॉड्स, वो उसमें बहुत अच्छे से वो किए हुए हैं। तो आप प्लीज़ शेयर करके, और प्लीज़ आप लोग रीड करिएगा उसे। मैम नेक्स्ट पेज लीजिए। देखिए साइबर क्रिमिनल वर्क कैसे करते हैं, हैकिंग करते हैं, वो अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है। इसको एक्चुअली ये हाई क्वालिटी वाला हाई क्लास का वो है। इतना आप लोग, मतलब लड़कियों के लिए इतना नहीं होता, ये तो साइबर सिस्टम्स के लिए है। बट फिर भी हैकिंग पॉसिबल है, क्योंकि अगर कोई, आप नॉर्मल है बट कोई जैसे हायर क्लास में जैसे एक्ट्रेस हो गए, या कोई ऐसा पर्सन जो अच्छी इमेज रखता हो अपनी समाज में, तो उसको ये लोग हैक करते हैं, मालवेयर डालते हैं उसके पास। फिर फेक वेबसाइट और ऐप्स हैं, वो उसमें आप ट्रिक करते हैं आपको। उसके अलावा फ़ोन स्कैम है, वो आपको फ़ोन करके कहते हैं कि हाँ भाई, आपका ये पार्सल आया हुआ है और एयरपोर्ट पे है,
और आप इसको प्लीज़ छुड़वा लीजिए, ये इतने पैसे का है। तो वह ऐसे फ़ोन जो ऐसे ही है आपने सुन रखे हैं। आपने काफ़ी लोगों ने ऐसे सुने होंगे कि एक पार्सल आया हुआ है आपका, या कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका एक पार्सल आपके घर के बाहर खड़ा हुआ है और आपको चाहिए, तो आपने कहा कि नहीं मैंने कोई पार्सल ऑर्डर नहीं किया है। तो वो कहते हैं नहीं मैम आपका ऑर्डर है, आपका नाम लिखा हुआ है। तो आप कहते हो कि नहीं हमने कुछ नहीं किया। तो कहेंगे मैम अच्छा एक काम करिए, आपने अगर नहीं किया तो आप एक ओटीपी आ रहा है, आप प्लीज़ ओटीपी शेयर कर दो जिससे मैं पार्सल वापस कर दूँ। तो आपके पास एक ओटीपी आता है, आप ओटीपी उसको दे देते हो। जैसे ही आप ओटीपी देते हो, सेम वही खाता आपका ब्लॉक या खाता आपका खत्म, आपके खाते से पैसे निकल जाएँगे।